types of goods. Goods are classified on the characteristics and how they are used in the economy. तो सबसे पहला categorization हो गया based on use, consumer goods and capital goods. अब देखो consumer goods कौन से हैं? Those goods which are meant for final consumption or goods which are meant for consumption by the user, they are consumer goods. Consumer goods के भी दो categories होंगे, एक consumer durables, एक consumer non durable. Consumer durable वो होंगे जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी और उसको आप एक दिन में नहीं ख़त्म करते, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू यूज इट. जैसे कि आपके घर का टीवी या रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, आर द कंज्यूमर गुड्स? Yes, but what kind of consumer goods? Consumer durables. And then there is consumer non-durables. Consumer non-durables are those which you do not use for a long period of time, but in the short run. कई बार consumer non-durables में perishables भी आते हैं. Like say for example, milk, egg, bread, etc. These would all become consumer perishables or consumer non-durables. और दूसरा होता है capital goods. Now what are capital goods? As we have already seen, they are tools, machines, etc. Capital goods are those goods which help in the production process, or capital goods are those goods which help in the production of other goods and services, or capital goods are those goods which are not consumed but utilized for the production process. Yeah, capital goods are those goods which are used to produce other consumer goods और अदर कैपिटल गुड्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? कैपिटल गुड जैसे कि एक लेथ मशीन हो गई समझ लो, या जैसे एक बॉयलर हो गया, स्मेल्टर हो गया, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट्स द नेचर ऑफ यूज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड विच मेक इट अ कैपिटल गुड और अ कंज्यूमर गुड. जैसे कि समझ लो आपने एक कंप्यूटर लेकर आए अपने घर और आपने उस कंप्यूटर को अपने घर पे रख लिया एंड यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग इट फॉर योर ओन सेक, देन इट इज अ कंज्यूमर गुड और अ कैपिटल गुड? Consumer. What kind of consumer good? Consumer durable. Then comes consumer non-durables also. लेकिन अगर आपने उस कंप्यूटर को लेकर समझ लो आपने एक छोटा सा स्टोर खोला है where you are helping people to fill the civil services preliminary examination form या civil services form, तो ये क्या बन गया आपका कंप्यूटर वहां पर? Capital good, because it is helping in providing a service. Do you get that? तो कंट्री में या तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे या तो कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. कैपिटल गुड के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. क्योंकि इसी से क्या होता है? इकोनॉमी में बाहर आती है. पैसे सोच कर देखो कि ग्रोथ बनती है. ठीक है, कैसे? अगर कैपिटल गुड्स आएंगे तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. सो अ गवर्नमेंट शुड फोकस मोस्टली ऑन प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, बट इट शुड ऑल्सो produce some consumer goods. Do you understand? But more focus should be where? On capital goods. तो अगर deficit होता है due to consumer expenditure, that is bad. अगर deficit होता है due to capital expenditure, that is good, which is also known as capex. Do you understand that? In the economy. Okay, if I produce say bridges, railway tracks, airports, ports, is this capital expenditure or consumer expenditure? Capital expenditure. Okay, so this is the first type of categorization based on use. Is this thing clear? Okay, let's move to the next one. Based on availability and scarcity, there are free goods and economic goods. Free goods are those which are abundant and available without any kind of cost. Like so for example air, sunlight, sea water, etc. Fresh water नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है. But these are mostly, they are the free goods. Free goods अगर आप देखोगे तो free goods क्यों होते हैं इकोनॉमी? क्यों होंगे फ्री गुड्स? एक तो ये हो सकता है कि इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे वेलफेयर इकोनॉमी है तो कुछ गुड्स को फ्री कर दिए, या तो फिर अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे भी फ्री गुड्स हो सकते हैं इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट प्रिपेयर्ड. डू यू अंडरस्टैंड दैट? और the government or international rules are not yet prepared with respect to usage of that particular good, या कोई agreement नहीं बना है उसको लेकर. अगर समझ लो ऐसा कुछ हो जाए that sea water can be utilized, just assume sea water can be utilized to extract some typical mineral, and that mineral can reverse say diabetes, ऐसा कुछ हो जाए समझ लो, then most countries would try to hold more and more sea water. तो जैसे लैंड का colonization हुआ वैसे sea water का भी colonization हो जाएगा. You understand that? So that is free
goods. Then comes economic goods, goods that are scarce in relation to their demand and thus require economic resources, जैसे land, labor, capital, entrepreneur, ये सारे हो गए आपके economic goods. computers, cars, oil, food, ये सब कुछ भी economic. जो भी free ना मिल रहा हो वो क्या बन जाएगा? economic good. Based on consumption patterns, durables, non-durables, perishable, ये मैंने आपको बता दिया पहले. Based on relation to other goods, substitute goods and complementary goods and independent goods. तो ऐसे देख लेते हैं सबसे पहले substitute goods. Substitute good मतलब एक का substitute दूसरा. Do you understand that? जैसे कि आप देख लो टी के लिए दूसरा substitute क्या है? कॉफी. ठीक है, तो इस तरीके के substitute goods हो गए. Complementary goods क्या हो गए? जो साथ में मिलकर यूज कर सकते हो. अगर आप उनको अलग रखोगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे, इकट्ठे जैसे ही ले आओगे आप उनको यूज करने लगोगे. जैसे कि समझ लो कार और पेट्रोल. सिर्फ पेट्रोल आप कुछ यूज नहीं कर सकते और कार बिना पेट्रोल के कोई काम नहीं आएगी. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री. बाइक और हेलमेट, जो है ना दैट. अब हेलमेट पहन के ऐसे तो कोई घूमेगा नहीं, तो ऑब्वियसली जब आप बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहनेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Independent goods are those which have no relation to each other. Do you get it? और आप एक को यूज कर सकते हो without caring for the other one. Do you understand that? Like say for example a cold drink and books. But sometimes can you see human behavior and it can link both the things. Do you get it? आपने देखा होगा जो e-commerce sites हैं उस पर आप कुछ और ही ऑर्डर कर रहे हो और साथ में कुछ और भी दिखा रहे. जैसे आप ऑर्डर कर रहे हो शूज तो वो दिखा रहे हैं कि साथ में आप डेटॉल का भी एक पैक ले लीजिए. कोई लेना देना नहीं. Do you understand that? But this is smart marketing strategy. Do you get it? तो ये बिहेवियर को नज करते हैं कि आपने शूज लिए हैं, मतलब आप बाहर भी जाओगे तो अंदर आओगे तो हो सकता है कुछ गंदा हो जाए तो डेटॉल भी यूज कर लो. तो इस तरीके से कुछ यूज करते हैं. So these are independent goods. Then comes on the basis of income elasticity. Now this is important. One is normal goods. Goods whose demand increases with an increase in consumer income. जैसे कि आप समझ लो कार्स या शूज या ब्रांडेड क्लोथिंग. जैसे ही इनकम ऊपर जाती है आप देखोगे इनकी डिमांड भी ऊपर चली जाएगी. All those goods whose demand increases with increase in income, they are normal goods. Do you understand that? Then comes inferior goods. Goods whose demand decreases with increase in consumer income. जैसे कि आप समझ लो चाइनीज फोन हो गए. ठीक है, दे आर इंफीरियर गुड्स क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम ऊपर जाएगी आप उनको छोड़ने लगोगे. ठीक है ना. बट अगेन व्हाट कैन डिस्टॉर्ट ऑल ऑफ दिस? ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर कैन डिस्टॉर्ट ऑल ऑफ इट. या जैसे कि समझ लो इंस्टेंट नूडल्स. कई बार ये इंफीरियर गुड होता है बट कई बार देखोगे आपकी इनकम बढ़ती है तो और ज्यादा आप नूडल्स कंज्यूम करने लग जाते हो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. बट थियोरेटिकली अगर हम बोले नॉर्मल गुड्स कौन से हैं जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर आपकी इनकम बढ़ जाए. ठीक है, जैसे कि समझ लो कोई कार है आप खरीदना चाहते हो, आपकी इनकम बढ़ गई आप ले लोगे. इंफीरियर गुड्स वो हैं जिसकी डिमांड घट जाएगी जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जैसे इंस्टेंट नूडल्स, लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. And luxury goods are those goods which are high income elastic goods. Demand increases disproportionately with an increase in income. अगर इनकम बढ़ जाए और समझ लो substantial rise हो जाए इनकम में, where you can now afford luxuries in life, तो luxury goods की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, जैसे गुची, प्राडा, ये सारी चीज़ें हैं ना. तो आप देखोगे बैग्स की, शूज़ की, डिज़ाइनर क्लोथ्स की, ये सारे डोशे गबाना और ये जो भी है आप देखोगे इनकी प्राइसेस, इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी. और आप देखोगे, आप देखकर दंग रह जाओगे कि ये बैग तो बाजार के झोले से ज़्यादा अलग दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप उसकी प्राइस देखोगे तो वो होगी 28 लाख, 32 लाख, 50 लाख. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दीज आर एक्चुअली गुड्स विच आर अ स्टेटस सिंबल. डू यू अंडरस्टैंड दैट? हो सकता है उसी के कंपैरिजन में दूसरा कपड़ा बहुत अच्छा है बट द फर्स्ट वन कैरीज द लेबल. ब्रांड की जो इमेज है ना
तो उस ब्रांड के लिए लोग पे करते रहते हैं, प्रोडक्ट के लिए पे करना बंद कर देते हैं, और ये सब कुछ साइकोलॉजी को फिर इम्पैक्ट करता है, बिकॉज like mostly in materialist world everybody wants to look great and all of that, right? तो ये एक रीजन है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ नेसेसिटी, एक तो नेसेसरी गुड्स हो गए, एक लग्जरी गुड्स हो गए। एग्जांपल्स देख ले तो फूड, मेडिसिन, वाटर, ये आपको चाहिए, और डिजाइनर क्लोथिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके लग्जरी गुड्स हो गए। बट कई बार क्या होता है कि कोई गुड लग्जरी से नेसेसिटी में चला जाता है, और नेसेसिटी से भी लग्जरी में आ सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन could become luxury if there is large scale poverty in a particular country. Even food could become a luxury in sub-Saharan countries. In several of those countries, you might have seen images of malnourished children, right? So that's something. और जैसे कि समझ लो high-end electronics could become a necessity in future. Like say for example, smartphones could become necessity. Like say for example, जितने भी government के साथ interaction होगा citizens का, that will be through smartphones. So it will become a necessity then after some time. Have you heard about the JAM Trinity? पता है JAM Trinity? जनधन आधार मोबाइल, इसका जो कॉम्बिनेशन है JAM Trinity. Based on nature of use, private goods, public goods, merit goods and demerit goods. तो private goods कौन से हैं? Goods which you use for your own purpose. These type of goods are both excludable and rivalrous. Excludable मतलब access can be restricted, जैसे कि पर्सनल व्हीकल्स, एक्सेस आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एंड राइवलरस, वन पर्सन्स कंजम्पशन रिड्यूसेस अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर्स। लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कार और उसकी टंकी पूरी फुल है पेट्रोल से, तो एक आदमी ले जाए घर का, दूसरा जब चलाने जाएगा तो उसके लिए रिसोर्स अब कम हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दे आर एक्सक्लूडेबल एज वेल एज राइवलरस, वेयर एज पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब आप इससे किसी को हटा नहीं सकते, और राइवलरस भी नहीं है, एक का कंजम्पशन दूसरे के कंजम्पशन पैटर्न को इंपैक्ट नहीं करता, जैसे कि रोड हो गया या मेट्रो हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कितने भी लोग चढ़े, कितने भी लोग आए जाए, सबको वही सर्विस मिलेगी। दे आर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन देता है? गवर्नमेंट। Private goods mostly people take it from firms. Do you understand that? National defense, public parks, clean air, ये सारे हो गए public goods. अब सोच लो इस बारे में, ठीक है? This is public good. Then comes merit good. Merit goods are those which have a positive impact on the consumer as well as the people who are in and around that person. Like say for example education. प्राइमरी एजुकेशन देख लो, वो एक मेरिट गुड है। मेरिट गुड से क्या निकलती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज दैट थिंग व्हिच पॉजिटिवली इंपैक्ट्स एवरीबॉडी। एंड डीमेरिट गुड से क्या होता है? निकलता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी which impacts the person who is consuming it and others who are in the vicinity of the person who is consuming it. तो ऐसे गुड्स को पिगोवियन गुड्स भी बोलते हैं। डीमेरिट गुड्स जो है उसको पिगोवियन गुड्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप समझ लो सिगरेट, सिगरेट वुड बी अ पिगोवियन और अ डीमेरिट गुड। ओके, सो दिस काइंड लाइक से फॉर नार्कोटिक्स अगेन वुड बी डीमेरिट गुड्स। तो इस पे एक टैक्स भी लगता है विच इज नोन एज पिगोवियन टैक्स, जो डीमेरिट गुड्स पे लगता है। टोबैको, अल्कोहल, जंक फूड, ये सब क्या हो गए? डीमेरिट गुड हो गए। बेस्ड ऑन रोल इन प्रोडक्शन, intermediate goods and final goods. अब यहाँ पे ध्यान, this is very important to understand GDP and all those kind of things. Intermediate goods are those goods which are added together to make the final goods. Okay, like say for example, आप एक कार बनाना चाहते हैं, तो टायर जो है क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। सीट्स क्या हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। जो बॉडी है कार की वो क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड हो गए। आपने सबको असेंबल किया और फाइनली क्या बना दिया? फाइनल गुड्स। Final goods are those goods that do not undergo any kind of transformation. Do you understand that? They are final goods. और जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो we take the money value of all the final goods and the final services within an economy during a period of time, normally 1 year. Do you understand that? That is GDP or gross domestic product. अच्छा एक बात बताओ, that if I take say क्या लगता है, मिल्क, कॉफी, बीन्स, शुगर, समथिंग लाइक दैट, कॉफी पाउडर, जो भी लगता है कॉफी बनाने के लिए, ऐसे समझ लो, ब्रिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर एंड इफ आई मेक कॉफी इन माय होम, सो आर द कॉफी बीन्स, द मिल्क, दे आर ऑल इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स?
they are final goods because they are not going through any kind of economic transformation और in the production chain में कोई transformation नहीं हो रहा है. But अगर वही कोई रेस्टोरेंट बनाकर वहाँ पे अगर समझ लो या कोई समझ लो स्टॉल लगाकर वहाँ पे अगर चाय या कॉफी पिलाई जाए तो वो क्या हो जाएगा? Intermediate. Do you understand that? So that is the difference between intermediate goods and final goods. Giffen goods and Veblen goods. अब ये समझ लेते हैं, ठीक है. Giffen goods एक typical type of good है, जो है तो inferior good, और inferior good का हमने क्या देखा था? Whenever the income goes up, the demand falls. But Giffen goods एक तरीके के inferior good हैं, जिसका demand बढ़ने लगता है. Do you understand that? अगर उनके prices भी बढ़ जाते हैं, अगर इंफीरियर गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप खरीदोगे उसको. एक तो है गुड इंफीरियर. समझ लो आपके सामने दो कार्स हैं, ठीक है. एक बहुत ही पुराने जमाने की ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली और एक एकदम मॉडर्न कार. दोनों का प्राइस सेम है, तो आप कौन सी खरीदोगे? सब्जेक्ट टू योर बिहेवियरल स्टेबिलिटी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब किसी को लगेगा कि नहीं यही कार तो दादाजी के पास थी तो यही वाली लूंगा, तो अलग बात है, ठीक है. पॉइंट इज कि अब अगर समझ लो वो पुरानी कार जो है उसका प्राइस बढ़ जाए, मॉडर्न कार से भी ज्यादा हो जाए, तब क्या आप उसको खरीदोगे? लेकिन गिफन गुड्स में ये दिखता है. यू अंडरस्टैंड दैट? गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, जिसका प्राइस जैसे ही बढ़ता है उसकी डिमांड और बढ़ जाती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट. तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम देख लेते हैं. Look here. Okay, just think of this, that suppose there is a household and household used to spend say this much on bajra and this much on wheat. ठीक है. अब हम ये मान रहे हैं कि उनकी जो इनकम है वो फिक्स्ड ही है, वो नहीं चेंज हो रही, लेकिन उनको इतना केजीज चाहिए होता है टोटल ग्रेन घर में कि जिससे सबका पेट भर जाए. समझ लो हाउस होल्ड ऑफ 5 एंड दे रिक्वायर 10 केजीज. तो ऐसा करते थे कि 6 ले लेते थे वो बाजरा का और 4 ले लेते थे व्हीट. इसमें से इंफीरियर कौन सा है? बाजरा इज इंफीरियर इकोनॉमिकली, नॉट एट द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. यू अंडरस्टैंड दैट? इकोनॉमिकली कौन सा इंफीरियर है इसमें? बाजरा. ठीक है. तो इंफीरियर गुड्स इतना और ये. तो प्राइस समझ लो ऐसा था, बाजरा का समझ लो ऐसे कुछ भी ले लेते हैं अभी 10 रुपीज पर केजी, और ये वीट समझ लो 25 रुपीज पर केजी, ऐसा होता था. ठीक है. अब इनकम चेंज हुई नहीं और 10 केजीज चाहिए ग्रेन्स के. क्या हुआ कि बाजरा के प्राइसेस में एकदम से उछाल आ गया. समझ लो बाजरा हो गया 20 रुपीज पर केजी. यू गेट दैट? और बाजरा वैसे भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा था घर में, तो उसका कंजम्पशन तो कम नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे? वीट को एलिमिनेट कर देंगे, पूरा ही बाजरा हो जाए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? या तो फिर बाजरा का अमाउंट बढ़ने लगेगा, वीट का अमाउंट घटने लगेगा. डू यू गेट दैट? सो बाजरा इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकम्स व्हाट? अ गिवन गुड. जिसकी प्राइस राइज जैसे हुई उसकी डिमांड भी बढ़ गई. डू यू गेट दैट? कैसे होगा? जब बाजरा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. अब समझ लो कि बाजरा 20 का हो गया, लेकिन ज्वार पता है ना आपको, ज्वार 10 का ही मिल रहा है. फिर क्या होगा? लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? बाजरा को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? ज्वार. डू यू अंडरस्टैंड दैट? देयरफॉर बाजरा इन दिस सेकंड केस वुड नॉट रिमेन अ गिवन गुड. अ गिवन गुड इज वन whose demand increases when its price also increases and the good is an inferior good. ऐसा तभी होगा when it is necessary in the consumption basket and secondly it does not have any kind of substitute. Clear हो गई बात? That is given good. अब दूसरा होता है Veblen goods. Veblen goods वो होते हैं जिनकी प्राइस जितनी बढ़ती है डिमांड और भी बढ़ती रहती है. And they are normal goods. Do you understand that? They are normal goods. Giffen goods कौन से होते हैं? Inferior goods होते हैं. Veblen goods कौन से होते हैं? Normal goods होते हैं. प्राइस जितनी उसकी बढ़ती रहती है डिमांड भी उसकी उतनी ही बढ़ती रहती है. Do you understand that? पर आपको पता है कि ये एक पॉइंट तक ही जाएगा, क्योंकि सबकी एक पेइंग कैपेसिटी तो होगी.
किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, लेकिन सबकी तो है ना. तो दैट्स द पॉइंट हियर, दैट वेबलिन गुड्स आर दोज गुड्स जिसकी जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड और भी बढ़ती रहती है. लाइक से फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉचेस अगर आप देखो तो रोलेक्स वॉच में नेक्स्ट एडिशन जो आता है उसका नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे सिटीजन एडिशन या कुछ भी नाम दे दिया उसका, ठीक है, और आपने देखा 6-7 लाख रुपए और जोड़ दिए उसमें, एंड देयर इज रश टू द स्टोर्स. या रोल्स रॉयस पता है ना आपको. सो रोल्स रॉयस जो है उसमें आप देखोगे कुछ भी नहीं किया बट प्राइसेस एकदम से बढ़ गए. नेक्स्ट टाइम क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक समझ लो स्टिकर लगा दिया, या जो ओनर है कुछ भी करवाते हैं, ठीक है, जैसे आप जाओगे तो वो बोलेंगे कि आपको आपका हम बिल्कुल पर्सनल टच दे देंगे, ये यहाँ पर आप अपने हाथ का निशान बनाएंगे, तो ये जब आप अपना बूट खोलेंगे कार का तो उसके पीछे दिखेगा आपके हाथ का निशान. 5 lakhs मोर, ठीक है. सो कुछ भी हो सकता है. सो सी अगेन disclaimer, I am not attacking any company. I am also not recommending or endorsing any product here, just I am telling you how economy functions by giving real world examples. So the point here is जैसे Rolex हो गया या Rolls Royce हो गया, इस तरीके की चीज़ें को आप बोल सकते हो, या Louis Vuitton हो गया जो बैग्स बनाती हैं, ये सारी कंपनीज क्या हैं, ये हैं वेबलिन गुड्स के बेस्ट एग्जाम्पल. यू अंडरस्टैंड दैट जैसी प्राइस ऊपर जाता है डिमांड और ऊपर चली जाती है, because as the price goes up lesser and lesser people can now afford it, so those who can afford it get more attracted. I can afford it.